Welcome to Still Learning. Today we are breaking down the essentials of GST, goods and services tax, step by step. Let's begin. Now let's quickly understand the meaning of GST. What is GST? The Goods and Services Tax in India was introduced on 1st July 2017. It was a significant reform aimed at creating a single unified tax system across the country, replacing a complex structure of multiple indirect taxes like VAT, service tax, excise duty, and others. GST is a destination based tax, meaning it is collected at the point of consumption, not at the point of origin. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था जिसका एम था एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम क्रिएट करना जो पूरे इंडिया में अप्लाई हो। इससे पहले इंडिया में कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते थे। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब टैक्स उस जगह से कलेक्ट किया जाता है जहां कंजप्शन होता है, ना कि ओरिजिन मींस मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से। Next, GST structure. GST has a multi-tier structure that includes CGST, Central Goods and Services Tax, collected by the central government on an intra-state sale. CGST means Central Goods and Services Tax. ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है जब सेम स्टेट के अंदर सेल होता है, मीन्स इंट्रा स्टेट सेल। नेक्स्ट, SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एन इंट्रा स्टेट सेल। ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है जब सेम स्टेट के अंदर सेल हो, इंट्रा स्टेट सेल। IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट सेल्स एंड इम्पोर्ट्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है जब अलग अलग स्टेट्स के बीच सेल होता है या इम्पोर्ट होता है, मीन्स इंटर स्टेट सेल्स और इम्पोर्ट्स। नेक्स्ट, GST tax slabs. GST has different tax rates depending on the category of goods and services. 0% essential goods like fresh vegetables, fruits and basic grains. 5% on basic items like edible oil, packaged food and transportation services. 12% on processed food, footwear and small restaurants. 18% standard goods and services like mobile phones, computers and restaurants with a turnover above a certain limit. 28% luxury goods and sin items like cars, tobacco and aerated drinks. Next, components of GST. GST has three main components. Input tax credit (ITC) allows businesses to claim credit for the tax paid on purchases and use it to offset the tax on sale. इनपुट टैक्स क्रेडिट ये बिजनेसेस को अलाउ करता है कि जो टैक्स उन्होंने परचेजेस पर दिया है उसका क्रेडिट क्लेम करें और उसे सेल्स पर लगने वाले टैक्स को एडजस्ट करने के लिए यूज करें। नेक्स्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM. इन स्पेसिफिक केसेस द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग GST इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मीन्स कुछ खास केसेस में GST का पेमेंट सप्लायर के बजाय बायर को करना होता है। Next, composition scheme, a simplified scheme for small businesses with a turnover up to a specified limit, offering lower tax rates and minimal compliance. ये एक simplified scheme है छोटे businesses के लिए जिनका turnover एक specified limit तक होता है। इसमें lower tax rate और minimal compliance होता है। Next, GST registration. Businesses with a turnover exceeding rupees 20 lakh, rupees 10 lakhs for special category states must register for GST. Some businesses must register regardless of turnover like interstate suppliers, e-commerce operators, businesses with reverse charge liability. जिन businesses का turnover 20 लाख से ज़्यादा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख्स उन्हें GST के लिए रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। कुछ बिजनेसेस को टर्नओवर की परवाह किए बिना रजिस्टर करना पड़ता है जैसे इंटर स्टेट सप्लायर्स जो अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स एंड बिजनेसेस जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी होती है। Next, benefits of GST. Elimination of cascading tax effect. GST ensures that tax is only on the value addition, eliminating the tax on tax scenario. GST ये इंश्योर करता है कि टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही लगे जिससे टैक्स ऑन टैक्स वाला सिनेरियो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स एंड सिंप्लीफाइड कॉम्प्लायंस बूस्ट बिजनेस एफिशिएंसी. यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स और सिंप्लीफाइड कॉम्प्लायंस से बिजनेसेस की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी. द GST पोर्टल अलाउज taxpayers to manage all activities online, enhancing accountability. GST पोर्टल टैक्स पेयर्स को सभी एक्टिविटीज ऑनलाइन मैनेज करने की बेनिफिट देता है जो अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट, challenges of GST. Compliance burden. Frequent changes and updates can be challenging for small businesses.
फ्रीक्वेंट चेंजेस और अपडेट्स स्मॉल बिजनेसेस के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं. क्लासिफिकेशन इश्यूज. डिटरमाइनिंग द करेक्ट टैक्स रेट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कैन समटाइम्स बी कॉम्प्लिकेटेड. गुड्स या सर्विसेज का सही टैक्स रेट डिटरमाइन करना कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस. जीएसटी प्रोसेसेस आर ऑनलाइन विच कैन बी चैलेंजिंग फॉर दोज नॉट टेक सेवी. जीएसटी प्रोसेसेस ऑनलाइन है जो उन लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है जो टेक सेवी नहीं है. Tech savvy means a person who has good knowledge of technology and can use it efficiently. Such individuals are comfortable with tools like computers, smartphones, and the internet and can easily understand and operate them. Next, impact of GST on businesses. Reduced cost due to the elimination of multiple taxes and smoother input tax credit mechanism. मल्टीपल टैक्सेस का एलिमिनेशन और स्मूथ इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म की वजह से बिजनेसेस के कॉस्ट कम हुए हैं. नेक्स्ट, ऑन कंज्यूमर्स. वेरिंग इम्पैक्ट बेस्ड ऑन द टैक्स रेट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. एसेंशियल गुड्स बिकेम चीपर वाइल लग्जरी आइटम्स सॉ अ राइज इन प्राइजेस. प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के टैक्स रेट के हिसाब से कंज्यूमर्स पर इम्पैक्ट अलग हो सकता है. एसेंशियल गुड्स सस्ती हो गई हैं जबकि लग्जरी आइटम्स के प्राइसेस में इंक्रीमेंट हुई है. ऑन इकोनॉमी. Boosted formalization of the economy, widened the tax base and aimed to increase revenue for the government. इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने में हेल्प मिली है, टैक्स बेस को वाइडन किया गया है और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करने का एम रखा गया है. नेक्स्ट, पेनाल्टीज एंड कॉम्प्लायंस. GST law imposes penalties for non-compliance including late fees for late filing of returns, interest on late payment of taxes, other penalties for fraud or willful evasion which can include fines and imprisonment. Next, GST versus previous tax system. GST replaced various indirect taxes like VAT, service tax, excise duty and octroi. It brought a shift from origin-based multi-layered taxation to a destination-based unified tax. GST ने कई इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और ऑक्ट्रॉय. इसमें ओरिजिन बेस्ड मल्टी लेयर टैक्सेशन से शिफ्ट करके डेस्टिनेशन बेस्ड यूनिफाइड टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन जीएसटी. HSN कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, अ कोड फॉर क्लासिफाइंग गुड्स अंडर जीएसटी. ये एक कोड है जो जीएसटी के अंडर गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट, SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड, अ कोड फॉर क्लासिफाइंग सर्विसेज अंडर जीएसटी. ये एक कोड है जो जीएसटी के अंडर सर्विसेज को क्लासिफाई करने के लिए यूज होता है. ई-वे बिल, एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर सर्टेन वैल्यू बिटवीन स्टेट्स. ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो गुड्स को एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट करते वक्त रिक्वायर्ड होता है. So that's all for this topic. I hope it is clear now. If you have any questions, feel free to leave them in the comments. I would be happy to address them.